Dear friends, welcome to the class of Arbitration and Conciliation Act 1996. Today we are going to start section 80 and section 76. These two sections are very important, and I hope with this arbitration act is now fully completed by my side and you also understood it, right? So syllabus is over with this session. I hope so. Yes, I think this is the last topic. And if any students have any kind of doubt, they can comment, they can mail us on this learnwithnishman@gmail.com. So let's start today's topic. Section 80. Section 80 talks about restrictions of conciliators. What are those restrictions that are imposed on the conciliator under this act? कौन कौन से ऐसी limitations है जिसके against conciliator नहीं जा सकते हैं? What are those boundaries inside which they have to work? That we will see under section 80. And section 76 says termination of conciliation proceedings. What are those situations under which conciliation proceedings came to end? That we will see. So let's start with the very first topic, section 80. Section 80 says that, listen it very carefully students, restrictions on the role of conciliators. जो conciliators का actual में role होता है, जो उनको काम दिया गया है, उस काम का क्या दायरा है, उस काम की क्या limitation है, what is the limitation against their role, that we will see in section 80. So section 80 says that this section places two restrictions. Okay, two restrictions हमें दी गई हैं. And what are those in the role of conciliators? Let's read. First of all, it prohibits the conciliators. Conciliators को किस चीज से रोका जाता है? To act as an arbitrator. Means कि जब arbitration proceedings अगर same matter की start हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ए और बी का कोई इशू था और ये जो ए बी का इशू था इसको सी सॉल्व कर रहे थे अंडर द कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स. लेटर ऑन ए और बी इसी मैटर को लेकर जाते हैं, मतलब उनको वो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग में शायद वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ है और वो लेकर गए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास. ठीक है, वही सेम मैटर. तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो आर्बिट्रेटर होगा वो अब सी नहीं हो सकता. C can either work as an arbitrator or as an conciliator. He cannot act as a both role, right? Both role में वो काम नहीं कर सकते. Conciliator अगर आप थे उनके मैटर के बीच में, now you cannot act as an arbitrator. That was in simple language. Representative भी नहीं आप act कर सकते हो. अगर उनके मैटर को कहीं आपको represent करना है, ये council of parties appoint किया जाता है तो आपको वो भी नहीं करना अगर आप conciliator एक बार रह चुके हो तो क्या क्या restrictions हुई? Not an arbitrator, not a representative and not a counsel, in respect of which dispute in the conciliation proceeding. जो actual dispute है, जो matter of issue है, उसके against आप other role play नहीं कर सकते. This is the first restriction. Moving to the another one, it also prohibits the parties. Parties को क्या काम करने से रोकती है? To dash the conciliator, to प्रोड्यूस द कॉन्सिलिएटर एज विटनेस. बाई चांस कल ये मैटर जो है ए और बी का, ये मैंने जैसे आपको बताया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में पहुंच जाता है या फिर कोर्ट में ही पहुंच जाता है मैटर दोबारा से, तो क्या ए और बी कॉन्सिलिएटर जो सी थे उसको एज अ विटनेस ला सकती हैं इन प्रोसीडिंग्स में या कोर्ट प्रोसीडिंग्स में? नो, दे कैन नॉट अपॉइंट हिम एज एन विटनेस ऑल्सो. तो आर्बिट्रेशन रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल तो कॉन्सिलिएटर नहीं प्ले कर सकता और पार्टीज कॉन्सिलिएटर को विटनेस के तौर पर भी नहीं दिखा सकती. सो कॉन्सिलिएटर कैन नॉट एक्ट एज एन विटनेस इन आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. So these are the limitations under section 80. Now come to another section. This is also very important, that is termination of conciliation proceedings. जो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैं वो कब टर्मिनेट हो जाती हैं, मीन्स कब वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई. आपको याद हो हमने ऐसे ही सेम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को भी देखा था कि व्हेन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स गॉट टर्मिनेटेड, सेम वे वी विल सी हाउ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स कम टू एंड. So section 76 lays down
4 वेज ऑफ टर्मिनेशन। कौन कौन से वो 4 तरीके हैं जिनसे कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड होती है स्टूडेंट्स? रीड विद मी। First of all, conciliation proceedings terminate with the dash of the settlement agreement of parties. Means parties के बीच में जब settlement agreement हो जाता है तो वो जब होने के बाद parties sign कर देती है ना students, when they sign those agreement of settlement, then automatically this conciliation proceedings got terminate. राइट ये खुद ही खत्म हो जाती हैं कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? दैट इज सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज. सो आफ्टर साइनिंग द सेटलमेंट एग्रीमेंट द conciliation proceedings terminate. Another method of termination is when conciliator खुद से क्या डिक्लेयर कर दे? In writing. What you have to see is here in writing that further efforts at dash at conciliation means conciliation में और आगे की प्रोसीडिंग मैं नहीं कर सकता. conciliation में बस यहीं तक ही काम हो सकता है. फर्दर एफर्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, आर नो लॉन्गर जस्टिफाइड इवन, कि अब फर्दर अगर हम प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन अगर करें तो वो जस्टिफाइड नहीं होगी, बस प्रोसीडिंग्स को यहीं रोक देना चाहिए. सो अगर कॉन्सिलिएटर को ये लगता है कि ये फर्दर एफर्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन कॉन्सिलिएशन तो उसको राइटिंग में दे देना चाहिए, और जैसे ही वो राइटिंग में देगा तभी से ही टर्मिनेशन मान लिया जाता है. देन थर्ड इज proceedings also terminate by written declaration. written declaration कौन दे? written declaration of parties. parties के द्वारा अगर कोई written declaration दी जाती है, किस चीज़ की declaration होनी चाहिए? एड्रेस टू कॉन्सिलिएटर, कॉन्सिलिएटर को वो डेक्लेरेशन दी गई हो पार्टीज द्वारा टू द इफेक्ट की कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स को अभी की अभी टर्मिनेट कर दीजिए. हम फर्दर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग नहीं चाहते. दोनों ही पार्टीज एग्री हैं. सपोज कीजिए ए और बी थे जो अपने मैटर को सी कॉन्सिलिएटर के पास लेकर गई. अब ए और बी दोनों ही एग्री करके सी को एक रिटन डेक्लेरेशन देती हैं कि जो ये कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग है इनको यहीं पर टर्मिनेट कीजिए. तो फिर कॉन्सिलिएटर क्यों कैरी ऑन करेगा? जब दोनों ही पार्टीज एग्री हैं कि उनको अपना डिस्प्यूट नहीं सॉल्व करवाना या वो फर्दर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स को कैरी ही नहीं करना चाहती, देन व्हाई विल कॉन्सिलिएटर कैरी इट ऑन? राइट. सो कॉन्सिलिएटर को जैसे ही पार्टीज की तरफ से एक रिटन डेक्लेरेशन मिलेगी वहीं पर ही क्या हो जाएगा? कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी. फाइन. नाउ मूविंग टू द फोर्थ वे. फोर्थ वे सेज दैट व्हेन पार्टीज डिक्लेयर क्या करें? इन राइटिंग. सारी चीजें देखिए सारी राइटिंग में है, राइटिंग में होनी बहुत जरूरी है. सो अगर पार्टीज राइटिंग में क्या डिक्लेयर कर दें टू दी अदर पार्टी, एक पार्टी अगर राइटिंग में ये डिक्लेयर कर दे दूसरी पार्टी को और कॉन्सिलिएटर को भी, मतलब दोनों को, दैट कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो है वो टर्मिनेट हो गई हैं, तो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स भी टर्मिनेट हो जाएंगे. अगर वो डिक्लेयर कर दे दैट मैं अपनी तरफ से आपकी बात मान लेता हूँ, ये मुझे इस इशू में फर्दर इन्वॉल्व नहीं होना, तो अगर पार्टी ये डिक्लेयर कर दे और वो ये डिक्लेरेशन दोनों ही पार्टीज मीन्स दूसरी पार्टी को भी और कॉन्सिलिएटर को भी दे दे तो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग यहाँ भी टर्मिनेट हो जाएंगी. Alright students, so this is your section 76 about termination, and section 80 was about the restrictions of role of conciliator. With this Arbitration and Conciliation Act is now came to an end. Might be there is one more session still left, but we will see that. Till then, keep reading, keep watching, stay tuned and be consistent in your studies. Don't skip any session. And again I am saying what principle you have to follow in studies, that is read, revise and repeat. Read, revise, repeat. Read, revise